Hello viewers, I am Deepti, continuing with question number 7 of ICSE class 10 paper which held today, that means on 10th March 2023. Question number 7, part 1. A bag contains 25 cards. So total number of cards in the bag are, total cards are 25. Number through 1 to 25, a card is drawn at random. What is the probability that the number on the card drawn is A is multiple of 5. Now we know that multiples of 5 from 1 to 25 are cards are from 1 to 25. It means 5 is the multiple of 5. 5, 10, 15, 20 and 25. Total number are 1, 2, 3, 4, 5. Favorable outcomes are 5. Total number of outcomes are 25. 5 upon 25, it means 1 upon 5. Straightway 1 mark for this. In B part, a perfect square. Perfect square means कितने हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 and then 25. It means again 5. 5 upon 25, answer is again 1 upon 5. Again you will get 1 mark for this part. In C part, a prime number. Prime numbers you need to write down carefully. 2 is the first prime number, then 3, then 5, then 7. 9 is not, 11 is, 13, then 17, then 19, then 23. So total these are the prime numbers from 1 to 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it means 9 upon 25 is the answer of C part. So you will get 1 mark for this, A part, B part and then C part. So 1 by 5, 1 by 5 and 9 by 25. This is our answer of question number 7. Question number 7 and this was part 1. Now coming to part 2. Now our part 2 is a man covers a distance of 100 kilometer. Distance is given as 100 kilometer. This is part 2. Traveling with a uniform speed of x kilometer per hour. Speed is given as x kilometer per hour. Both the units are given in kilometer and kilometer per hour, so we need not to change the units here. Had the speed been 5 kilometer per hour more, so it means new speed is given as x plus 5 kilometer per hour. Then it would have taken 1 hour less. Find x the original speed. Now we know that speed is equal to distance upon time, but here we need time, so time is equal to distance upon speed. So initial time taken was 100 upon x, and then new time taken was 100 upon x plus 5, and the difference in the time is given is equal to 1 hour. Here hour is a unit, so r is equal to 1. So now we need to take the LCM, x and x plus 5. 100 we can take common, x plus 5 on this side minus x on this side equal to 1. X get cancelled. 100 is equal to, go through that side after cross multiplying, x square plus 5x. X square plus 5x minus 100 equal to 0. It means quadratic. We can solve this quadratic. 500 x square plus 5x, and here 5 into 100. 5 is also missing. So 500. So we need to get this 500 and middle term split में 5 आना चाहिए. So 500 के फैक्टर्स के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 25 into 20 करेंगे तो 500 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा. तो x square plus 25x minus 20x minus 500 equal to 0. This is 500 equal to 0. So x plus 25 minus 20, x plus 25. Speed cannot be negative terms. So speed is equal to x minus 20 equal to 0. It means x is equal to 20 kilometer per hour. You can also check your answer. If I substitute 20 here, you can check 100 upon 20 minus 100 upon 20 plus 5 means 25. So 100 upon 20 is 5 and 100 upon 25 is 4. It means 1. 1 is our right hand side, 1 hour less. So it means our answer is correct. X is equal to 20 kilometer per hour is the answer of this second part. It is of 3 marks.
So first mark is for your equation here. Second marks for your completion of this and making quadratic equation here. And then third part is of your final answer. Now coming to third and last part of question number 7. This is from mensuration. Now here a solid is in shape of a sphere of radius 7 centimeter. Hemisphere. Hemisphere. This is given, surmounted by a cone of height 4 centimeter. The height of cone is 4 centimeter and radius is 7. So both will have radius as 7 centimeter. Radius is given as 7 centimeter. This solid is immersed completely in a cylindrical container filled with water. हमने इसको कंटेनर के अंदर डाल देना है. इट मीन सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डाला गया है. सिलेंडर में कितना पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा? एक लेवल दिया गया है और एक और लेवल दिया गया. आपसे पूछा गया कितना पानी का लेवल इसमें ऊपर आ जाएगा. रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमें यहाँ पर जो है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है. बहुत अच्छी वैल्यूज दी गई हैं ताकि स्टूडेंट को वैल्यूज में कोई डिफिकल्टी ना आए. 7, 14 इजीली कट होने वाली वैल्यूज दी गई हैं, बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली, ताकि बहुत लंबी कैलकुलेशन ना जाए. और हमें ज्यादा कैलकुलेशन की इसमें जरूरत भी नहीं है. तो पहले हम एक इक्वेशन बना के रख लेते हैं. टोटल वॉल्यूम of water in cylinder. Total volume of water. What is the formula of volume of cylinder? It is pi r square h. So pi value is 7, 7 square and h we need to calculate here. So pi में ही रहने देंगे अभी, अगर बाद में कैंसिल हो रहा होगा नहीं तो फिर वैल्यू डाली जाएगी. ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा. इसके बाद अब इसमें सेकंड पार्ट में हम अब इस हेमिस्फीयर और कोन यानी इस सॉलिड फिगर की वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं. जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना ही तो वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, उतना ही वाटर इंक्रीज हो जाएगा, लेवल ऊपर हो जाएगा. ओवरफ्लो तो तब होता अगर पूरा भरा हुआ होता. तो अभी हम यहाँ क्या निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. Now what is the value of hemisphere here? 2 by 3 pi r cube. So 2 by 3 pi, where r is 7 r cube, plus volume of cone is 1 by 3 pi r square 7 square, and cone height is given as 4. So for easy calculation we can take 7 common, 7 square common, 7 square and pi we can take common. So here 1 7 is remaining, 7 into 2 14 upon 3, plus here 7 square pi is common, 4 upon 3. So total value is 7 square and pi, and then 14 plus 4 is 18 upon 3. This is the value of second equation. Now we need to equate these two equations for getting the value of this h, because the increase in water level is equal to only this much, the volume of the total solid figure which we get here. So pi 7 square h is equal to 7 square pi 18 upon 3. Now 7 square pi we get cancelled and h is equal to, h is equal to 6 common आएगा. Let me check the calculation here. It is 49 pi, and here it is, okay, the radius of cylinder is given as 14, not 7. So here we cannot cancel these as it is. So this is 14 square, pi 14 square h. So pi है 14 square है, h है equal to, इस तरफ हमारे पास 7 square है, pi है, and this cut we can cut here 6 आ जाएगा. h pi we can get cancelled. Now 7 into 7 into 6 upon 14 into 14. 7 2 14, 7 2 14, 2 3 6, 3 upon 2. So 3 upon 2, or you can write as 1.5 centimeter is the increase in level of water. This rise in level of water is 1.5. 1.5, and all the units are given in centimeter. So centimeter is also must. 1.5 centimeter
आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है। फ्रैक्शन में आंसर देने पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, आपके सारे आंसर्स डेसिमल में होने चाहिए। सो नाउ कमिंग, दिस इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। सो इसका अगर हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मार्क यू विल गेट फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि सिलेंडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का 1 मार्क हो जाएगा। Here you will get another 1 mark. After calculation, when you equate these two, you will get another matlab third mark, and then at the end, if your all calculation is correct, you will get your 4th mark in this question. Now coming to question number 8. Question number 8 is marks scored by a set of students in an examination. Calculate the mean of the distribution by using the shortcut method. So marks are given. हमने मीन मीडियन मॉड का क्वेश्चन किया था अपने डाउट सेशन में। मैंने आपको तीनों मेथड्स बताए थे, 0 to 10, 10 to 20। तो शॉर्टकट मेथड में हमने सिर्फ डी तक निकालना है। अगर स्टेप डेविएशन कहता है फिर हमें टी निकालना रहता है, अभी नहीं कहा तो हमने टी नहीं निकालना, सिर्फ डी तक निकालना है। यानी एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम कह सकते हैं, ये वो भी है। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम एज्यूम्ड मीन मेथड भी होता है। नाउ हियर 3, then 8, 14, 9, 4 and 2. These are the values of frequency given in the question. Now for x it means mid value 0 to 5. We can easily calculate. For x mid value is 5, then 10 and 20 15, then 20 10 10 का difference है, then 25 35 45 and then 55. सिग्मा एफ भी नीड टू कैलकुलेट। तो यहाँ सिग्मा एफ का टोटल सम जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 40। अब हम यहाँ से डी निकालेंगे, इट मीन्स हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एज्यूम्ड मीन यहाँ हम 35 को ले रहे हैं क्योंकि 6 वैल्यूज है, तो आप 25 को भी ले सकते हैं। हम 35 को लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, 25 को लेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। उसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, वो इजिली आंसर आपको सेम जगह पे पहुंचाएगा। हेयर एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 35, सो डी इज इक्वल टू x माइनस ए, इट मीन्स 35 हम लेते जाएंगे। तो 5 minus 35, it means minus 30, then minus 20, then minus 10, then 0, then 10 and then 20. This is D. Now last step of this is FD, F into D, F into D. This is our D, this is F. We need to multiply these two columns. So minus minus 90, 3 3 90 हो जाएगा, 8 2 minus 160, then minus 140, then 0, then 40, then 40 and then minus 310 is the answer of sigma FD. Sigma FD. Now coming to the formula of this question, mean is equal to sigma FD डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और मैंने बताया था जो हमने माइनस किया है उसको प्लस कर देंगे। जस्ट एफ डी इज माइनस 310 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हमने कैलकुलेट किया था 40 माइनस 310 डिवाइडेड बाय 40, एंड देन ए हमने एज्यूम्ड मीन किसको लिया है 35 को। तो यहाँ पर 31 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7.75, बट माइनस में आएगा। मैंने बताया था अगर हम 35 बड़ा नंबर ले रहे हैं तो माइनस में, अगर आपने 25 में लिया तो आपका इसका आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि हमारा आना तो इन्हीं दोनों के बीच में ही है आंसर। तो 35 माइनस 7.75 इज 27.25 is the mean of this given data. अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से आंसर आएगा। तो मीन में भी अगर आपका ये 3 मार्कर क्वेश्चन है तो 3 मार्कर क्वेश्चन में आपके कॉलम्स देखे जाएंगे कितना आपने ठीक लिखा है। अगर आपका एफ डी ठीक है, एफ डी का आंसर ठीक है, इट मीन्स ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू आपकी ठीक आ रही है। माइनस 310 यहाँ पर 1 मार्क हो जाएगा, सिग्मा एफ हो गया। 3 मार्कर क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन के बाद आपको यहाँ पर लास्ट मार्क मिलेगा, या फिर इस स्टेप का आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसमें मुझे भी नहीं पता है, इस पार्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट। मीन हमने निकाला शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन नहीं मांगा गया था।
स्टेप डेविएशन अगर होता तो आपने इसको टी से निकालना था, अभी नहीं करना हमने टी से इसको, क्योंकि सिर्फ शॉर्टकट कहा गया है, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड कहा गया है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, what number should be added to each of the numbers? Numbers given are 4, 6, 8 and 11. Which number is added to all of these to get the 4 numbers in proportion? तो proportion में लेने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको proportion का मतलब क्या हो गया कि सब में हम x प्लस करते जाएंगे, यानी कि 4 प्लस एक्स का करने के बाद 6 प्लस एक्स के साथ जो रेशियो आएगा वही रेशियो इन दोनों का भी आएगा, 8 प्लस एक्स एंड 11 प्लस एक्स. So now we can cross multiply them, 4 plus x and then 11 plus x, we can multiply 8 plus x and then 6 plus x. Just multiply them. 11 4 44 plus 4x, 11x plus x square, 8 6 48 plus 8x plus 6x plus x square. X square will get cancelled. This is 15x plus 44 and this is 8 6 14x plus 48. Now 15 minus 14 is x and 48 minus 44 is 4. So x is equal to 4. Very simple question. You will get straightway 3 marks for this question. X is equal to 4. First step for taking this x, starting में हम लिखेंगे let x is the number which we are going to add in all of these. Let x be the assumed number. यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको फिल करेंगे. आपको 1 मार्क तो यहीं पे मिल जाएगा, 1 मार्क कैलकुलेशन का होगा और लास्ट फाइनल थर्ड मार्क जो है वो आपका x इज इक्वल टू 4 निकलने पर आपको मिल जाएगा. अब अगला है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन. कंस्ट्रक्शन की फिगर तो डाल नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा फ्री हैंड समझा देती हूँ क्या है थर्ड पार्ट में. ये तो वैसे आपने ठीक किया होगा. कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो अब हम AB को अगर ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो हमारा नीचे पहले बन गया AB. कंपास से स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना है. यहाँ पूरा स्केल पे 6 सेंटीमीटर आपने मार्क के लेना है. ये डायग्राम मेरा अप टू द स्केल नहीं होगा क्योंकि मैं स्केल से नहीं ले रही हूँ. अब इसमें BAC का एंगल, पहले हमने AB ले लिया, अब BAC का एंगल मतलब हमने A पे ड्रॉ करना है 120 का एंगल. कल मैंने बाई चांस लाइव सेशन में 120 का ही बनाया था. 120 में आपका यहाँ से कट हुआ, ये 60 हुआ, ये आपके पास एक और 60 हुआ, यानी ये आपका 120 बन जाएगा. A पे 120 एंगल बनने का मतलब आपका लाइन इस तरफ में जाएगा. और ये कितनी लेनी है आपने, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेनी है. तो आपका 120 ले रहे हैं आप, यहाँ गया ये एंगल 120 का, और ये 5 सेंटीमीटर पे ऐसे कट कर देंगे आप 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर आप आंक लगाएंगे, इस साइड की डायमेंशन आपको 5 सेंटीमीटर दिया. आप जहां भी ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर, वहां आप एक पॉइंट लगाइए और यहाँ से आप उसको B के साथ ऐसे ज्वाइन कर दीजिए. तो आपका ये ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया. अब कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट, मेजर एंड राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो अब आपने इसको करना है. तो आपको मैंने बताया ही था, जब आपको सर्कम सर्कल बनाना है तो आपको लाइन बाई सेक्टर्स लेने हैं, यानी आप इस लाइन पे कंपास यहाँ रखोगे, कंपास नीचे और ऊपर पॉइंट लोगे, फिर यहाँ रखोगे B पे और इस तरह से पॉइंट लोगे, और आपके पास इस लाइन यानी AB की बाइसेक्टर आ जाएगी कुछ इस तरह से. इसी तरह से आप AB की भी लाइन बाइसेक्टर बनाएंगे, यहाँ पे रखकर यहाँ, यहाँ पे रखकर यहाँ, और यहाँ भी इसका आर्क कटेगा. तो इस तरह से ये ऐसे चला जाएगा. जहां ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं वहां पर हमारा सर्कल का सेंटर आ गया है. और क्योंकि हमने सर्कम सेंटर बनाना है तो हम यहाँ से एक साइड तक पे पूरा चले जाएंगे और फिर हम सर्कल को उसी सर्कल से तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए लेके जाएंगे. मेरा तो सर्कल नहीं बनेगा, आपको पता ही है, मैंने फेक ऐसे ही लिए हैं, डायमेंशंस प्रॉपर नहीं है, बट आप अगर ध्यान से लोगे तो आपका सर्कल बिल्कुल ठीक बनेगा और तीनों साइड्स को टच करेगा. ठीक है, तो ये आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है. मेयर एंड राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्कल. हाँ, आपको इसमें रेडियस को जरूर मेयर करना है. तो रेडियस को मेयर करने के लिए आपका सेंटर तो आ ही गया है, अब आप कहीं से भी इसका यहाँ से लाइन लेकर के रेडियस को मेयर कर सकते हैं. तो अप्रोक्सीमेटली इसमें रेडियस जो है इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर आ रहा है, बट हो सकता है 0.1 की टॉलरेंस होती है, 0.1 ऊपर या 0.1 नीचे भी आपके पास आ सकता है. तो इस तरह से आ रहा है. आई होप ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा और आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे. कंस्ट्रक्शन में बहुत इजीली मार्क्स आप पकड़ सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9, फिर हमने कल इसका भी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कल की वीडियो का मैंने कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का इसीलिए लिया था और आपको कहा भी था कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, और बाई चांस अंडर रूट वाला ही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 2x + 2 प्लस अंडर रूट 2x - 1 अपॉन अंडर रूट 2x + 2 माइनस 2x - 1 इज इक्वल टू 3 है, पर नीचे हमने खाली नहीं छोड़ना, नीचे भी हमने 1 लगाना है क्योंकि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दोनों साइड्स में इक्वली लगता है। अब हम इसको ऊपर जाकर प्लस करेंगे तो 2x + 2 प्लस 2x - 1, अगर हम चाहें तो इसको, आपको पता ही है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका माइनस वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका इसी का ही ट्वाइस आ जाएगा। तो पूरा स्टेप नहीं भी लिखते हैं, एक बार ऊपर जाकर ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले में हमारे पास ये वाला कैंसिल होगा तो ये वाला बच जाएगा, इट मीन 2x - 1 बच जाएगा। इस तरफ में भी हम लगाएंगे तो 3 + 1 आ जाएगा, नीचे भी 3 - 1 आ जाएगा, 3 + 1 = 4, 3 - 1 = 2, इट मीन 2 आ जाएगा इस तरफ में आपके पास। अब इधर अगर हमने देखा तो ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस स्टेप के बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पर हमने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया एक स्टेप, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट विल गेट कैंसल्ड, 2x + 2 आ जाएगा, नीचे 2x - 1 आ जाएगा, उस तरफ 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2 इज इक्वल टू 4x - 2 हो जाएगा आपके पास, 4x उधर जाएगा तो 2x आ जाएगा और 2 इधर आएगा तो 4 बन जाएगा। 2x + 2 ऊपर है, 2x - 1 इधर है, और इस तरफ हमारे पास कितना बन रहा है, 3 गिवन था ना आपको यहाँ पे, 3 अपॉन 1, तो 3 + 1 एंड देन 3 - 1, 3 + 1 is 4 and then 3 - 1 is 2, 3 - 1 is 2, then 2 हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो ये इस तरफ जाएगा तो हमारे पास कितना आ रहा है 2 4x - 2, इट मीन्स इधर गया तो 2x आया, 2 + 2 इधर 4 आया, तो x इज इक्वल टू 4/2, इट मीन्स 2 आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन में एरर ना हो, अदरवाइज ये ठीक है, पहले मैंने कैलकुलेट किया तो 1 आ रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। 2x + 2 मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 2x - 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 2 रहेगा, नीचे में लेके जाएंगे तो 2x - 1 रहेगा, 2 रह जाएगा, इधर 3 + 1 3 - 1 बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस स्टेप इज अगेन करेक्ट, 2x + 2 2x - 1, बट दिस साइड 3 + 1 and 3 - 1 4/2. Okay, I got my mistake. This is 2. When we square both sides, then we need to square this 2 also. It means 4. This side we get 4. Okay. So here 2x + 2 is equal to 4 into 2 8x minus 4. Now this will 2 will come to this side, transposing 6x and then here 6. So x is equal to 6/6 is equal to 1. So x is equal to 1. This is our correct answer. X is equal to 1. For this component of dividendo question, the value of x is 1. 3 मार्क्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन पहला आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो सही लगाने पर उसका आंसर आने पे 1 मार्क मिल जाएगा। दूसरा, आप जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं उस स्टेप पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और थर्ड मार्क जो है वो आपको लास्ट स्टेप पे मिल जाएगा। दिस इज अवर 3 मार्कर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम AP. AP is given as 15, 30, 45, 60 and 300 is the last term. Which term of AP is 300? We need to tell them. मतलब हमने n कैलकुलेट करना है। Hence find the sum of all the terms of the AP. तो दोनों पार्ट्स उन्होंने मिक्स करके आपको अच्छे से दे दिए हैं। A यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 15 है, D is equal to 30 minus 15, it means 15 है। तो n कैलकुलेट करने के लिए a n का आंसर हमें 300 गिवन है, a n is equal to a plus n minus 1 we need to calculate, n minus 1 into d, it means 15 plus 15n minus 15, it means 15n is equal to 300। आप देख रहे हैं कल मैं आपको बार बार कैलकुलेशंस में क्या कह रही थी कि जो हमारे पेपर्स बनते हैं काउंसिल के द्वारा उनमें वैल्यूज इतनी सिंपल होती हैं कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती है। देखिए कितनी सिंपल कैलकुलेशन आ रही हैं। तो n इज इक्वल टू 20, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 20, यू विल गेट फुल 1 मार्क टिल दिस स्टेप। देन हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इसमें आपने सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स के लिए अब आप Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, S20 करेंगे, तो 20/2 n/2
2a प्लस n माइनस 1d से भी कर सकते हैं और a प्लस l से भी कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में आपको पहले भी बताया a प्लस l भी इसी का फॉर्मूला है। तो a क्या है 15 है और लास्ट टर्म क्या है 300 है, तो हम इससे भी इस फॉर्मूला को कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ गया और यहाँ पर 315 आ गया, यहाँ से 3150 आ गया। बट मे बी आप में से किसी ने ये मेथड ये फॉर्मूला नहीं चूज किया हो तो हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। S20 इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा, 2a, a मीन्स 15, 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 20, 19 और d कितना हमारे पास अभी आया था 15। आप इसको कैलकुलेट करोगे तब भी आपके पास इतना ही आएगा, 10 आ गया, यहाँ से 30 आ गया, 19 इंटू 15 हमारे पास 285 आ जाएगा। 285 में आप 30 प्लस करेंगे तो आपके पास 30 प्लस करने के बाद आपके पास वही 315 ही आ रहा है और जीरो से करेंगे तो 3150 आ जाएगा। तो 3150 is your final answer for the sum of all the 20 terms of the given AP in this question. 1 mark you will get for n is equal to 20 and then 2 mark you will get here for after finding the sum of this AP. Now coming to heights and distance question, which is third part of question number 9. Here figure is also given. हाइट्स एंड डिस्टेंस में स्टूडेंट का आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है जहां फिगर ही दी जाती है। तो पेपर इस बार बहुत अच्छे से सेट किया गया है, स्टूडेंट को बहुत सारे प्रिविलेजेस दी गई हैं। आपको 45 डिग्री का एंगल भी दिया गया जिसका वैल्यू सबको पता ही है 1 होगा। एक के लिए आपको टेबल जरूर यूज करना पड़ेगा, वो है 38 डिग्री। टावर की हाइट भी आपको 100 मीटर गिवन है, ये डी दिया गया है, ये सी है, दिस इज ए, दिस इज बी। 100 मीटर हाई मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए तो आपको पता ही है ये 45 है, इट मींस यहाँ पर भी 45 होगा। इफ दिस इज 38 देन यहाँ पर भी 38 डिग्री ही होगा respectively. If the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ships A and B to the nearest meter. So let this distance AC is equal to x. It means हम लिखेंगे let the distance of ship है, let the distance of ship A जो है हमारे पास AC है उस from the foot of the tower is x और दूसरी तरफ जो हमारा BC आ जाएगा उसको हम y ले लेते हैं। हमने लेट कर लिया इजी कैलकुलेशन के लिए। अब हम नॉर्मल ट्राइंगल ले लेंगे, पहले हम DCA ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DCA P यानी 100 अपॉन B यानी x, P अपॉन B इज tan 45, इट मींस 1, सो x इज इक्वल टू 100। 1 मार्क tan 45 पे ही आपकी वैल्यू भरते ही इक्वल हो गया और 1 मार्क आपको यहीं पे मिल जाएगा। दिस अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो। नाउ सेकेंड ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल DCB। इन ट्राइंगल DCB our value of height of tower is 100 and distance is y. Here tan 38 you need to use trigonometrical table here जो आपको वहां पर आराम से मिल गया होगा और 38 की भी नॉर्मल वैल्यू आपको देखनी थी, 0.7813 इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। y इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.7813। तो यहाँ पर आपके पास 6 जीरोस हो जाएंगी ऊपर और नीचे आएगा 7813। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है जहां पर आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा होगा। वैल्यू कम्स आउट टू बी 127.99। सो x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू दिस मच 127। ऑल दीज वैल्यूज आर इन मीटर, तो यहाँ पर आप यूनिट भी लगाएंगे। नाउ टोटल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू this plus this, it means x plus y. x value of x is 100 and value of y 127.99। हम इसको यहाँ पे भी राउंड फिगर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नियरेस्ट मीटर में माना है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 227.99 और यू कैन राइट 228.99 को आप इस स्टेप पे भी राउंड फिगर कर सकते हैं। तो 228 मीटर इज द वैल्यू ऑफ दिस AB। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स A and B is 228 मीटर। यहाँ पर आपको एक स्टेप के लिए जो है वो लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी मार्क्स फुल मिल पाएंगे। नॉर्मल स्टूडेंट इस स्टेप पे इसको इस तरह से लिख लेगा, लेकिन डिवाइड करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उन्होंने नियरेस्ट मीटर में बोल दिया तो आप यहाँ पर भी 27.9 आ रहा है तो आप छोड़ दो,
7.9 पे आपका 128 यहीं से आ जाएगा, 128 प्लस 100 228 यहीं से आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली. सबसे सिंपल क्वेश्चन जो कि आपने बहुत बार किया है, और वीडियो में कल ये मैंने ऐसे एटलीस्ट आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने डाउट सेशन में भी दिए हैं, प्रीवियस डे भी दिए हैं, कल वाले में भी दिए गए हैं. 2x³ है, -x² है, -13x है, -6. आई थिंक वैल्यूज भी सेम है. अब हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स हमें चाहिए और कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें fx या px या gx कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं. अब सबसे पहले आपको फिल करके देखना है 1 पे फिर 2 पे. अभी तो हमने देख लिया, तो ये 2 पे आ रहा है. इट मीन्स हम यहाँ पर -2 फिल कर रहे हैं, तो हमारा ये कैंसिल हो रहा है, मतलब फैक्टर बन रहा है. फिर भी हम एक बार चेक करते हैं. माइनस और शो तो आपने करना ही है. -2 का स्क्वायर -13 -2 -6 कितना हो जाएगा. 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 16, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ऑड पावर है, तो माइनस का 16 आ जाएगा. इधर माइनस का 4, इधर प्लस का 26, इधर माइनस का 6. तो अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है, ये 3 माइनस में और ये मिलके 26 ही बन रहा है. इट मीन्स हमारा आंसर 0 आ रहा है. इट मीन्स f-2 से ये 0 हो रहा है. तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन रोकना नहीं है. इट मीन्स x+2 मेरे पास फैक्टर है. कल भी अगर आपको याद हो तो x+2 ही हमारा फैक्टर आया था. आई थिंक क्वेश्चन सेम है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट यही है, सिमिलर टाइप है बिल्कुल. तो x+2 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे. फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं है तो मुझे रब करना पड़ेगा. ये नहीं है कि वो अननेसेसरी स्टेप है, हम उसको छोड़ सकते हैं, वो शो करना है. फैक्टर आने का आपको 1 मार्क मिलेगा फैक्टर आने तक के लिए. अब इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, तो 2x³ को x से करोगे तो 2x², you will get 2x², you will again get 2x³ and then 4, 2 into 2 4, x² minus minus, this will get cancelled, minus minus plus, so minus 5x² minus 13x then minus 6, so it means minus 5x. कितना हो जाएगा, minus 5x² minus 10x plus plus cancelled, minus 3x minus 6, it means minus 3 minus 3x and minus 6 get cancelled. You will get this this quadratic. So 2x² minus 5x minus 3. So 3 2 it means 6 चाहिए. 6 1 जा 6. तो 6 प्लस का या माइनस का, यहाँ माइनस है तो माइनस का ही 6x और प्लस का x minus 5. 2 कॉमन, 2x कॉमन, x minus 2 3 6. Here this is 3. So 1 common, x minus 3, x minus 3 and 2x plus 1. And our third factor we have already calculated. This is x plus 2. So these are our 3 factors of this question. x plus 2, x minus 3 and 2x plus 1. ये factors हैं हमारे इस polynomial के. जिस स्टूडेंट ने ये पूरे तीनों अच्छे से कैलकुलेट किए हैं उसको इसके पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है. 1 mark for this, second mark for this, third mark for factor and last में तीनों फैक्टर्स इकट्ठा लिखना है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स आएंगे, तो 4 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे. इस डिवीजन को शो करने का भी आई थिंक 1 मार्क होगा, तभी 4 मार्क में दिया गया है. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2. मेडिकल चेकअप ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. तो हमने इसका ओजिव बनाना है. अब ओजिव बनाने के लिए तो मेहनत लगेगी बहुत, पर करनी है. मैंने वीडियो में भी 2 ओजिव आपको बना के पूरा समझाया था किस तरह से ओजिव बनना है, स्केल कैसे चूज करना है, स्केल राइट हैंड साइड में लिखना है. ये सब चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, तभी इस क्वेश्चन के मार्क मिलेंगे. आपको पता है ये 6 मार्कर क्वेश्चन है और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि आना ही आना है. 6 मार्क्स में तो हम पूरा अच्छे से मेहनत करेंगे तभी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे. 28 माइनस 30, 30 माइनस 32, 32 माइनस 34, 34 माइनस, इस बार के लिए तो कॉन्टिन्यूस डाटा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को. 36, 38, 38, 40, 40, 42, 42, 44.
ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा नोट करने के बाद एक बार अपनी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। अगर उसमें गलती है तो आगे के लिए गलती हो जाएगी। 2, 4, 10, 13, 15, 9, 5 एंड देन 2। दिस आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओजिव में ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी रहती है और किसी में नहीं। 2 हो गया, 2 + 4 6 आ जाएगा। इसी तरह से 16 आ जाएगा, 16 एंड देन 29 देन 44 देन 53 देन 58 एंड देन 60। इट मीन्स हमारी लास्ट टर्म यहाँ पर 60 आ रही है। तो मीडियन हमारा कितना हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2, इट मीन्स 60/2, इट मीन्स 30th टर्म। तो 30th टर्म अब हमने कहाँ देखनी है, उसके लिए हमें ओजिव ड्रॉ करना पड़ेगा। ओजिव ड्रॉ करने के लिए कोशिश कर लेती हूँ। उस दिन तो बिल्कुल ठीक वैल्यूज आ गई थी, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ठीक ही आएंगी, क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ करने में और आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हो में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ हमें स्केल भी दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg अलॉन्ग 1 एक्सिस। पहले ये तो पता है ना कि हमने कहाँ किसको लेना है, जो वेट है यानी केजी हमने नीचे लेना है। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg के लिए बोला गया हमें। तो यहाँ पर हम किंक दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम थोड़ा सा गैप छोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा किंक देना है। और उसके बाद फिर हम आगे के वेट लेते जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टार्ट तो 28 से हो रहा है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हमने मान लेते हैं 28 ले लिया। 2 सेंटीमीटर का ही लेना है। आपके 2 बॉक्स जो रेड वाले ग्राफ अगर आपको मिला होगा, उसके 2 बॉक्स, यानी एक जो बड़ा बॉक्स आ वहां पर आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 28 हो जाएगा। फिर इसके बाद 32 आ जाएगा। मेरा मुझे लगता नहीं ग्राफ इसमें पूरा भी आ पाएगा, 30 भी है और पास आना पड़ेगा। वैसे तो अब जो आप करके आ गए हो चेंज तो होगा नहीं। 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 एंड 44। ये हमारी आ गई वेट, यानी कि यहाँ पर हमने लिखना है, ये हमारे एक्स एक्सिस पे वेट आ गए हैं और वेट केजी में है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ केजी भी, इन केजी भी लिखा कीजिए। और हम साइड में यहाँ पर स्केल भी लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें कितना केजी दिया गया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 kg along x एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट along y एक्सिस। इतना पूरा लिखना है। इसको ना लिखने पे भी आपका एक नंबर सीधा डिडक्ट हो जाएगा। दोनों एक्सेस का एक नंबर हमको लिखना रहता है। अब यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आपका 10 स्टूडेंट्स में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे कहाँ तक जा रहे हैं, 60 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम गैप ले सकते हैं ठीक से, पर हमने लेना तो दोनों तरफ सेम ही है, तभी ओजिव ठीक बनेगा, नहीं तो वैल्यू ही ठीक नहीं आएगी, क्योंकि स्केल हमें 2 सेंटीमीटर ही दोनों तरफ लेना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। और हमने इस तरफ क्या लिया है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा इस तरफ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इसकी हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। आप चाहो तो आप एक और लिख के छोड़ा कीजिए। अब इसके बाद हम वैल्यूज लेते जाएंगे। 30 पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, तो हम 30 पे 2 से स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफ। यहाँ से स्टार्ट होगा, चाहेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे। 30 पे हमारे पास 2 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 32 पे 6 आ जाएगा। 32 पे 10 से नीचे ही रहना है आपके पास, यहीं पे हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 34 पे 16 है, 34 पे 16 अप्रोक्सीमेटली एट दिस पॉइंट। 36 पे 29, 30 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तो 29। फिर 38 पे 44, 44, 40 पे 53, 53 मीन्स 50 से थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा, 55 से तो नीचे ही रहना पड़ेगा, 53। देन 42 पे 58, 60 से 2 यूनिट्स नीचे, और देन 44 पे हमारे पास आ जाएगा 60। तो 44 पे हम चले जाएंगे 60 के आगे, 60। बहुत थोड़ा सा गैप है क्योंकि 58 ही है और 2 ही है, तो इस तरह से हमारे पास ये कर्व आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ही आपने ज्वाइन करना है, आपके पास ऐसी ही फिगर आ जाएगी।
फ्री हैंड ज्वाइन करने पे। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हाँ, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहले हमने मीडियन निकालनी है। बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी आज नहीं आ पाएगी, तो आपको थोड़ा सा वहां पर देखना पड़ेगा कि आपके ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि मेरा ग्राफ इतना एग्जैक्ट नहीं है। तो हमारा 30 आ रहा था, हम 30 से यहाँ पर आ जाएंगे, 30 से हम ओजिव की तरफ आएंगे, और ऐसे एरो भी लगाएंगे और फिर हम इसको नीचे लेकर आएंगे। अब नीचे लेकर आने पर हमारा मीडियन जो है वो क्या निकल रहा है, यही हमारी वैल्यू पे असर डालेगा कि कितना आ रहा है। अब मेरे हिसाब से ये 36 बन रहा है, क्योंकि ये 36 पे आ रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 36 में भी आपका 37 भी आ रहा हो, बट मेरे हिसाब से मीडियन का आंसर 36 आ रहा है। 37 आ सकता है, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया है। नेक्स्ट पार्ट अपर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, लोअर क्वार्टाइल n/4, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n/4, n क्या है 60, 60/4 करके और फिर इसको 3 से कर देंगे, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा ये 180, 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 16 एंड देन 5, 45 आ रहा है। 45 आपका अपर क्वार्टाइल आ रहा है। अपर क्वार्टाइल 300 डेसिमल में आना चाहिए था। 60/4 एंड 3/4 डेसिमल में नहीं आया। 4 4 16 17 18 20 45। अपर क्वार्टाइल मेरे हिसाब से 45 आ रहा है। फिर हम यहाँ से 45 से आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर हम इसको नीचे लेकर आएंगे। इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी मेरी, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। इसमें मेरी वैल्यूज आपसे वेरी कर सकती हैं, क्योंकि ये वैल्यूज मेरी एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, उससे ऊपर रहेगा, ये तो पता ही चल रहा है कि थोड़ा सा उसकी अपर साइड में ही जाएगा, अपर क्वार्टाइल है तो। कितना ले सकते हैं हम, 38 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, या फिर 38 ही ले लेते हैं। अपर क्वार्टाइल के हिसाब से हमारा Q3 इट मीन हमारा 38 आ रहा है। आपने तो ग्राफ पे प्रॉपरली ड्रॉ किया होगा, तो आपका बिल्कुल ठीक ही होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose weight इज अबव 37 kg। अब 37 kg से अबव किसका वेट है, तो हम इन दोनों के बीच में आएंगे। तो 37 से हम यहाँ, इन सब में तो हमारा एरो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, आपने ये एरो जरूर मार्क करने हैं। अब इन दोनों के बीच में हमारा 37 आएगा, 37 से आप ऊपर जाएंगे और 37 से फिर आप इस तरफ आ जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट्स का वेट आपका इससे ऊपर जाएगा, तो फिर मेरा ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 38 आ रहा है, मे बी आपका 37 आ रहा हो, तो वो भी ठीक होगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज अबव 37। तो ये तो जहां तक ये नंबर आ रहा है, इट मींस ये तो इससे नीचे वाले हैं। याद करो, मैंने आपको रिवीजन के टाइम बताया था, तो ये 38 मतलब इससे कम वाले हैं, उनका वेट 37 से नीचे है। तो हमारे पास ज्यादा वाले कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ तक हैं इसके अंदर, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। यानी कि टोटल हमारे पास कितना आया था इस क्वेश्चन में, टोटल है 60। तो 60 में से हम ये 38 माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 38 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस में 22। तो 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, अगर आपका यहाँ से मिलाने के बाद यहाँ 37 आ रहा है, अगर ये 37 है ये तो 23 है, तो यहाँ पर +-1 आप टॉलरेंस लेके चल लो। 23 भी ठीक होगा, 24 भी ठीक होगा, बट अगर आप 38 या 37 पे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आपका ये नंबर पूरा डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको माइनस करके जरूर शो करना है इसके अंदर। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, जिनका वेट ज्यादा है वो टोटल में से हम इसको माइनस करेंगे। 60 माइनस 38, और ये इसमें हमने एरो ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि हम इसमें 37 वेट वहां से लेकर आए हैं और इस तरफ को आ गए हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। किसी और क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको आंसर्स जल्दी दे सकूं, सॉल्यूशंस जल्दी दे सकूं। मैंने आपको ग्राफ पेपर शो भी कर दिए हैं। अगर आपको उसमें नहीं समझ में आएगा तो मोड वाले के लिए भी एक बार और ट्राई तो कर सकते हैं। मॉड के लिए आपको ओजिव का समझ में आ गया, तो मैं यहीं पर एक बार थोड़ा सा मॉड वाला क्वेश्चन भी बता देती हूँ। मे बी आपको वो फिगर दिखाई ना दी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका पार्ट 1 था, हिस्टोग्राम वाला। तो हिस्टोग्राम में भी आपके पास इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है, बार बनाने हैं आपने। यहाँ पर एक किंक दे देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 200 100 का बोला हुआ है आपको इसके अंदर।
तो ये 200 से हमारा सीधा 100 आगे जाएगा, यानी 300 जाएगा, 400 जाएगा, 500 जाएगा, देन नेक्स्ट इज 600, 700 एंड लास्ट इज 800। 800 तक हमारा यहाँ पर ये पूरा जाएगा। हमारा एक्स एक्सिस पे इनकम हमने शो करनी है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। हिस्टोग्राम के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, और यहाँ पर 2 का ही डिफरेंस है, तो स्केल जरूर लिखना है इसमें भी आपने। स्केल को कहीं भी इग्नोर नहीं करना, ग्राफ का मतलब ही स्केल होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड देन 16। यहाँ तक तो आप शो कर सकते हैं 16 तक, क्योंकि हमारी हाईएस्ट वैल्यू 16 तक ही जा रही है, तो यहाँ तक आपको शो करना ही पड़ेगा। वैसे तो आपको इसके ऊपर की भी एक आध वैल्यू लेनी चाहिए। तो 16 तक आ जाएगा। आप ग्राफ पेपर पे नीटली ड्रॉ करोगे प्रॉपर पेंसिल के साथ तो आपके पास ठीक ही आएगा। अब पहले ग्राफ में 200 से 300 के बीच में हमारे पास जो डाटा दिया गया उसके हिसाब से 6 वर्कर्स हैं। 6 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 बना रही हूँ, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं ड्रॉ किया था। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। ये स्केल लिखना है, जो गिवन स्केल है ये आपको लिखना है, चाहे आप यहाँ लिखिए, वैसे राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखना रहता है आपको, ये स्केल जरूर लिखेंगे। तो पहली वैल्यू हमारी 6 आ रही है। 200 से 300 के बीच में हम यहाँ 6 तक चले जाएंगे, इस पर हमारा बार आ जाएगी फर्स्ट वाली। देन 300 टू 400 में हमारी बार जाएगी 10 तक। देन 400 टू 500 में हमारी बार 14 तक है, हाइट 14। देन नेक्स्ट 16, देन नेक्स्ट 10, और लास्ट में हमारा टर्म जा रही है 4 तक। तो 4 हमारा यहाँ तक आ रहा है, 4 पे हमारा ये लास्ट बार भी बन जाएगा। ठीक है, अब इधर इनकम और इधर ये नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं लिखा, तो इसके लिए भी 1 मार्क आपको पेनलाइज कर सकता है टीचर। अब यहाँ पर हमने इसको मीट करवाना है। डॉटेड लाइन स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, डॉटेड पतली पेंसिल के साथ, ताकि आपके पास मोड बिल्कुल ठीक आ पाए, और फिर उससे नीचे आप लेकर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास मोड आ जाएगा। अब ये आ रहा है 500 और 600 के बीच में 550 होगा, और ये 550 से इस तरफ ही है। मेरे हिसाब से ये 26 बन रहा है। मैंने सुबह भी अभी पिछली वीडियो में बताया था 526 बन रहा है। आप 525 या 527 के भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रुपीज यूनिट लगाना है, ये हमारे मोड की वैल्यू बन रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हमने किया है यहाँ पे सेक्शन बी का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पेपर बहुत इजी है, सबने अच्छे से किया होगा। Thank you for watching till the end. Best of luck for your other exams also. आई होप जैसे आज का पेपर अच्छा आया है, ऐसे ही बाकी पेपर्स भी अच्छे आए और हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मूड से सारे पेपर्स दे पाएं। Thanks to all of you for watching till the end. Goodbye for now.